الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اس باوقار اجلاس کے صدر باتمکین فضیلت الشیخ نور الہدیٰ سلفی حفظہ اللہ، رئیس الجامعہ فضیلت الشیخ ابو ناصر رضا الحسن آروی حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ حضرت مولانا انور علی آروی حفظہ اللہ، دیگر ذمہ داران و اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور شہر سے تشریف لائے ہوئے دیگر معزز علماء کرام، عمائدین شہر اور سامعین گرامی قدر، مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرا مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرا تاریخ اسلام اور بالخصوص تاریخ اہل حدیث ہند کا وہ روشن باب ہے کہ جو اس ملک کی تاریخ میں ہماری بنیاد کا بڑا ہی اہم پتھر مانا جاتا ہے. میرے لیے بڑی سعادت کی بات کہ میں آج یہاں زیر تعلیم طلباء کی اپنی انجمن ندوۃ الطلباء کی اس 33ویں اجلاس میں مدعو کیا گیا، شریک ہونے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے. آپ نے یہ جو شکایت کی یہ بالکل وجہ ہے کہ دعوت مجھے اس سے پہلے بھی آئی اور ایک سے زائد مرتبہ آئی، لیکن میری اپنی مجبوری یہ ہے کہ میں ایک تو تدریس سے جڑا ہوا آدمی ہوں، ہفتے میں صرف 1.5 دن کے لیے میں دعوت و تبلیغ کے کام سے کہیں باہر جاتا ہوں، اور دوسرے یہ کہ دعوتی پروگرام بھی بہت سارے پہلے سے طے رہتے ہیں. تو جن تاریخوں پہ آپ نے مدعو کیا میں نے اس لیے معذرت کی کہ میرے لیے اس وقت حاضر ہونا ممکن نہ ہو سکا، ورنہ سچ بات تو یہ ہے کہ اس ادارے کا نام ہی کافی ہے کہ کوئی بھی اہل حدیث دنیا کے کسی بھی خطے سے یہاں چلا ہوا آئے، دوڑا چلا آئے. حضرت مولانا ابو محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ ہماری بنیاد کا وہ پتھر ہیں، یہ ہماری تاریخ کا وہ سنگ میل ہیں جن کو دیکھ کر نسلوں نے اپنے سفر آخرت کو طے کیا، جن کی تعلیمات اور محنتوں کا ثمرہ ہندوستان کے چپے چپے تک پہنچا ہے. تو میں سب سے پہلے تو یہی کہنا چاہوں گا کہ
कुछ तो मजबूरी रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। बिला वजह मैंने आपसे कभी माजरत नहीं की, और आइंदा भी अल्लाह ने चाहा जब कभी मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर यहाँ आऊँगा। इसलिए कि यहाँ आकर मैं आपको कुछ देता नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ आकर मेरे अपने हौसले को जिला मिलती है। यहाँ मुझे मेरे अपने ईमान की ताज़गी का एहसास होता है। यहाँ आकर लगता है कि हम अपने असलाफ़ से जुड़े हैं, असलाफ़ की तारीख़ से जुड़े हैं, और असलाफ़ ने जिस सरज़मीन पे कारनामे अंजाम दिए उस ज़मीन पर हमारे कदम पड़ जाएँ तो यूँ लगता है कि बड़ी मज़बूत ज़मीन पे हम खड़े हैं। हाज़रीन गिरामी क़द्र, आज का ये जो इजलास है नदवतुत तलबा का सालाना इजलास है, 33वां सालाना इजलास। यहाँ हमारे सामने तलबा का जो अमली मुज़ाहरा हुआ वो खिताबत और तकरीर का था, और दूसरा पहलू जिसका यहाँ अमलन मुज़ाहरा नहीं हुआ लेकिन तारुफ में उसका खुसूसी तौर पे तज़किरा किया गया कि तलबा बाकायदा तहरीरी मैदान में भी मश्क करते हैं। कुछ बातें इसी हवाले से मैं आप तलबा के सामने रखना चाहता हूँ कि इस मजलिस के असल रूह रवा आप तलबा हैं। तकरीर और तहरीर ये दोनों आपके वो ज़राए और वसाइल हैं जहाँ से आप अपना पैगाम दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मैं आज सबसे पहली बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप कुरान मजीद की इस तालीम को हमेशा याद रखिए कि वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। दाई की सबसे पहली दावत उसकी अपनी शख्सियत और उसका अपना किरदार होता है, उसका अपना अमल होता है। आप अल्हम्दुलिल्लाह खिताबत और किताबत यानी कलम और ज़बान दोनों पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप ये जहन यहाँ से लेकर सबसे पहले जाएं कि आपका अपना अमल और आपका अपना किरदार आपकी सबसे बड़ी तबलीग है। और इस मुल्क हिंदुस्तान की तारीख अगर आप पढ़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ ज़्यादा मुअस्सिर वो शख्सियतें रही हैं जो ज़बानो बयान से ज़्यादा गैर मामूली किरदार के हामिल थी, चाहे वो तसव्वुफ के नाम पे हो या गैर मुस्लिमों के साधु संतों के नाम पे हो या अल्लाह की तौफीक से हमारे वो बाअमल उलमाए अहले हदीस हों जिनके किरदार की रोशनी आज तक नस्लों की रहनुमाई कर रही है। मैं आप तलबा को सबसे पहले याद दिलाना चाहता हूँ कि आप इस सबक को कभी ना भूलें कि हमारी तकरीर और हमारी तहरीर से ज़्यादा हमारा किरदार बोलना चाहिए, हमारे किरदार की आवाज़ ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए। फिर आप देखिए आपका किरदार गैर मामूली होगा, आपका अंदाज़े खिताबत दरमियाना भी होगा तो बड़े कामयाब मुकर्रिर आप होंगे। आपकी तहरीर में बहुत ज़्यादा जान ना हो, अदबी चाशनी भी बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन आपकी तहरीर में वो रूह ज़रूर आएगी जो रूह लोगों के दिलों पे दस्तक देगी। ये पहली मेरी नसीहत है मेरे अपने भाइयों को, आप अजीज़ तलबा को, कि असल किरदार की दावत जो होती है वही हकीकी दावत होती है। और अल्लाह ने यही कहा कि दाई वो होता है जो अपनी दावत में ये ज़रूर कहता है वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहले तुम्हें अपने आप को नमूना बनाकर अपने पैगाम की तरफ दावत देता हूं। ये बात अपने पास आप हमेशा लिख के रखिए, जहन नशीन रखिए कि हमें इस मैदान में सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तलबे अजीज, तकरीर और तहरीर माजी करीब में एक बहुत बड़ा मसला ये अहले इल्म के दरमियान अक्सर महल्ले निज़ा था, आपस में बहस होती थी कि तकरीर ज़्यादा अहम ज़रिया है कि तहरीर ज़्यादा अहम ज़रिया। एक तालिब इल्म को तहरीर पर मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए कि तकरीर पे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। आपको साहिब कलम बनना चाहिए कि आपको एक अच्छी ज़बान में तकरीर करने वाला बनना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, माज़ी करीब तक भी बल्कि आज भी बहुत सारे अहले इल्म ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि तहरीर ही सबसे ज़्यादा अहम मैदान है। और उसके पीछे कई वजूहात। एक बड़ी वजह यह बताई जाती है कि तहरीर इसलिए अहम है कि आपका लिखा आपके बाद भी हमेशा बाकी रहता है। तकरीर से यानी ज़बान में कही गई बातें अक्सर ज़ाय हो जाती हैं, लोग सुनते हैं भूल जाते हैं।
تقریر ایک مجلس کے لیے ہوتی ہے، تحریر کئی نسلوں کے لیے ہوتی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے۔ اور تقریر اور تحریر میں موازنہ کرتے ہوئے اہل علم نے یہ بھی فرق بتایا کہ تقریر میں آدمی چونکہ برجستہ بولتا ہے یا تیاری کر کے بولے، تب بھی خیالات اس قدر زیادہ مصفہ مجلہ منقح ہو کر نتھر کر سنور کر نہیں آتے جس قدر زیادہ صاحب قلم اپنی تحریر کو سنوار کر پیش کر سکتا ہے، اپنی بات کو نکھار کر پیش کر سکتا ہے، جس قدر زیادہ تحریر کے اندر پختگی آتی ہے تقریر کے اندر نہیں آتی۔ یہ سارے وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کے سامنے اہل علم ہمیشہ تحریر کو فوقیت دیتے نظر آتے تھے۔ لیکن میں آج یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، یہ ساری فضیلتیں تحریر کو حاصل ہیں، بجا ہے، اور یہ اپنی جگہ پہ سچائی ہیں، لیکن بدلتے زمانے کے ساتھ کچھ حقیقتوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تحریر سے زیادہ کچھ پہلوؤں سے، کچھ ناحیوں سے تقریر زیادہ افضل اور بہتر ہے اور ہو سکتی ہے۔ ان میں سے ایک دو پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا پہلو تو یہ کہ تحریر کو سماج کا ایک محدود طبقہ ہی ہمیشہ پڑھتا ہے، اور تقریر ہر عام و خاص کے دل و دماغ تک پہنچتی ہے، اس کے کانوں پہ دستک دیتی ہے۔ آپ کی آواز، آپ کا پیغام دور تک پہنچنا ہو تو آپ کو صاحب تحریر بن کر مطمئن ہو جانے کے بجائے تقریر پر محنت کرنی چاہیے کہ اسی سے آپ سماج کے ان پڑھ اور گنوار طبقے تک بھی اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تقریر کا اپنا امتیاز۔ دوسری بات، انبیاء علیہم السلام کے ہم اور آپ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وارث بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انبیاء کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا پیغام خواص کے لیے نہیں تھا، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے صرف نہیں تھا، ان کا پیغام سماج کے ہر طبقے، ہر فرد، بلکہ ہر مرد و خاتون کے لیے تھا۔ آپ کی تحریر اکثر سب تک نہیں پہنچ پاتی۔ اس طرح اتباع سنت کا بھی پورا پیغام آپ دیکھیں گے انبیاء کی سیرتوں اور سنتوں میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ تقریر یا زبان کو لوگوں کو سہارا بنانا چاہیے، وسیلہ بنانا چاہیے۔ یہ تیسرا پہلو یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ماضی قریب تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ تقریریں جس مجلس میں کی جاتی ہیں اسی مجلس میں ختم ہو جاتی ہیں اور ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن آج وہ دور نہیں رہا۔ آج یہ صورتحال ہے کہ تقریریں بھی باقاعدہ محفوظ ہوتی ہیں، اور جس طرح تحریر کاغذ پہ آ کے ہمیشہ کے لیے رہ سکتی ہے جب تک اللہ رکھنا چاہے، بالکل اسی طرح آپ کی تقریر بھی محفوظ رہ سکتی ہے، رہتی ہے۔ اور عملاً اگر دیکھیں موجودہ دور میں تقریر کی پہنچ تحریر سے زیادہ ہے۔ میں کیوں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں؟ اہل علم اگر کسی خاص سیاق میں آپ کو صاحب قلم بننے پہ ابھاریں تو آپ کو تقریر میں بے رغبتی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور کسی مناسبت سے کوئی آپ کے سامنے تقریر کی فضیلت پر گفتگو کریں تو آپ کو تحریر کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک اچھا مجاہد سپاہی ہر طرح کے ہتھیار سے لیس بھی ہوتا ہے اور ان ہتھیاروں کو چلانا بھی جانتا ہے، آپ طلبہ کو تقریر و تحریر دونوں میدانوں میں بھرپور تیاری کر کے نکلنا چاہیے۔ جب آپ تقریر کریں تو زمانہ آپ کو سنے، اور جب آپ لکھیں تو زمانہ آپ کو پڑھے۔ وَمَا الدَّهْرُ إِلَّا مِن رُوَاتِ قَصَائِدِي إِذَا قُلْتُ شِعْرًا أَصْبَحَ الدَّهْرُ مُنْشِدًا۔ میں کہوں تو زمانہ سنے، میں لکھوں تو زمانہ پڑھے۔ یہ آپ کے اندر ہمت و حوصلہ اور اتنا ہی آپ کے اندر عزم ابھی سے ہونا چاہیے۔ طلبہ عزیز، آپ اپنی تقریر اور تحریر میں نکھار پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک باکمال لکھنے والے بننا چاہتے ہیں یا ایک باکمال مقرر بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو کن بنیادوں پہ محنت کرنی پڑے گی؟ میں آپ کے سامنے 3 بڑے پہلو رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا پہلو ہے وہ ہے اپنے آپ کو علمی اعتبار سے مضبوط کیجیے، علمی اعتبار سے مضبوط کیجیے۔ اور آپ الحمدللہ کتاب و سنت کی اس خالص دعوت سے جڑے ادارے میں زیر تعلیم ہیں، اور یہاں سے فارغ ہو کر سلفیان ہند کے مرکزی دارالعلوم میں آپ داخل ہونے جا رہے ہیں۔ علمی اعتبار سے اگر آپ بننا چاہیں، اللہ کے فضل و کرم کے بعد آپ کے پاس اسباب مہیا ہیں، میسر ہیں۔ آپ کو ہر علم و فن کی بنیادوں پر نہیں بلکہ اس کے تمام اصولوں پر
इहाते के दर्जे तक पहुंचकर दस्तरस हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके पास अगर इल्म मजबूत नहीं होगा, न ज्यादा दिन तक आप एक कामयाब मुकर्रिर की हैसियत से अपनी शनाख्त बाकी रख पाएंगे, और न ही आपकी कलम में ज्यादा दिन तक वो जादू बरकरार रहेगा। अल्फाज के जादूगर वक्ती तौर पर लोगों को मुतासिर तो कर सकते हैं, लेकिन मैदान में ज्यादा देर तक टिके नहीं रह सकते। इसलिए इल्मी काबिलियत के बगैर आप अपने आप को एक अच्छा मुकर्रिर, एक अच्छा मुहर्रिर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। तौबा कीजिए ऐसी गलती से, रुजू कीजिए ऐसे ख्यालात से। अपने आप की इल्मी बुनियादें इस कदर मजबूत कर लीजिए कि इन बुनियादों को कोई हिला ना सके। सुभान अल्लाह, आप कितने मुबारक हैं कि आपको बराह रास्त कुरान और सुन्नत के नुसूस से इस्तिंबात और इस्तिदलाल की बारीकियां पढ़ने के लिए जो उलूम मतलूब हैं, उन उलूम को घोल घोल के पिलाया जा रहा है। और फिर इन्हीं उलूम की तदबीक अगली जमातों में आपके सामने होगी जब आप फिक्ह पढ़ेंगे, जब आप अकीदा पढ़ेंगे, अकीदे की तफसीली मबाहिस पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि यही उलूम तफहीम दीन में अपना किरदार कैसे अदा करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कामयाब तालिब इल्म वो है जो सबसे ज्यादा अपनी दरसियात पे मेहनत करे। सिर्फ दरसियात पे मेहनत करे नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत अपनी दरसियात पे करे कि आपकी हकीकी इल्मी बुनियाद मजबूत होती है आपकी अपनी दरसियात से। ये जो आपको अलिफ्बा पढ़ाने वाले उस्ताद हैं, वो जो तजवीद में एक एक हर्फ का मखरज सिखाते हैं, आप उनसे शुरू कीजिए, तो वो जो बाद में चलकर आपके सामने शेखुल तफसीर, शेखुल हदीस, कोई मुहद्दिस, कोई मुफस्सिर, कोई फकीह आपके सामने बैठकर मुख्तलिफ उलूम व फनून का दर्स देंगे, आप उनसे ऐसे अपने आप को जोड़ेंगे, लगेगा कि उस्ताद की रूह गोया आपके अंदर मुंतकिल हो रही है। ये उसी वक्त होगा जब आप अपनी बुनियादों को मजबूत करेंगे। मैंने कहा तकरीर और तहरीर के लिए सबसे पहली और अहम बुनियाद है इल्मी तौर पर अपने आप को मजबूत कीजिए। दूसरी चीज है आपको जबान पर मुकम्मल दस्तरस होनी चाहिए, और सिर्फ मुकम्मल दस्तरस नहीं, और जबान के असालीब से खेलना आपको आना चाहिए। ताबीरात पे ऐसी कुदरत होनी चाहिए, आपको मालूम हो कि एक ही मफहूम को मैं 10 जुमलों में अदा कर सकता हूं, तो इस वक्त के लिए इस सियाक में मुझे कौन सा जुमला सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जबान पर आपको मुकम्मल गिरफ्त होनी चाहिए। जबान कैसे मजबूत होगी? जबान कैसे मजबूत होगी? उसका सबसे पहला तरीका यह है कि जो कलमकार बड़ी अच्छी जबान लिखा करते हैं, खास तौर पर अदीब, गरचे बसा औकात वो बेदीन होते हैं, गरचे बसा औकात वो लोग अपने दीनी एतबार से इस पोजीशन के होते हैं कि शराब से उनका रिश्ता है, बेनमाजी है वगैरह, लेकिन जबानो अदब का अगर मसला है, आप उनको पढ़िए जिनकी जबान बड़ी अच्छी है। जब तक आप जबान खूब नहीं पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे, कसरत से नहीं पढ़ेंगे, जबान की ताबीरात, जबान के असालीब और जबान में अपने माफी ज़मीर को अदा करने का सलीका आपके अंदर पैदा नहीं होगा। आप सबसे पहले ऐसे कलमकारों को पढ़ना सीखें जो कलमकार वाकई मानों में जबान के मामले में अपनी पहचान और शनाख्त रखते हैं। दूसरी बात, जबान पर गिरफ्त या अपना एक तरह से यूं कहिए कि काबू पाने का तरीका यह है, बाज अहले जबान ने जिक्र किया है, किसी भी जबान पर आप मुकम्मल दस्तरस हासिल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि उस जबान के कम से कम 2000 शेर आपको याद होने चाहिए, कम से कम 2000 अशआर आपको ज़ब्ते ज़हन होने चाहिए। और किसके याद रखें, हमारे तलबा अक्सर व बेशतर वो अशार याद करते हैं जो सतही हैं, वो अशार याद करते हैं जिनकी ज़बान में काफ़ी गलतियां हैं, वो अशार याद करते हैं जो असल शायर की ज़बान से कई मरहलों में बदल कर अपना वज़न खो चुके होते हैं। नहीं, आप अच्छे शुआरा, मोतबर शुआरा के दवावीन से लीजिए और उनके अशार को याद कीजिए, और आप देखेंगे अगर आपको किसी भी ज़बान के 2000 शेर याद हो जाएं,
आप भूल जाएंगे वो अशार बाद में, सब शेर आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन 2000 शेर याद कर लेने और उनको समझ लेने के बाद आपकी जबान पर अल्फाज ऐसे आएंगे जैसे 10 वस्ता खड़े हों और आपसे कह रहे हों कि हुजूर फरमाइए कि मैं आपकी क्या खिदमत करूं। यही मसला है, बहुत सारे लोग अपने माफी ज़मीर को अदा करना चाहते हैं, बर वक्त उनकी जबान पे अल्फाज नहीं आते। उसकी वजह यह है कि जबान पर उनकी मेहनत बड़ी कमजोर है। और ये तीसरा पहलू है, मैं उसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। इब्तिदा में आप जिस मरहले में हैं, इस मरहले में आपको जबान पे इस तरह मेहनत करनी चाहिए कि आप जब कभी कोई इबारत पढ़ें, कोई एक नया लफ्ज आपको नजर आता है, डिक्शनरी खोलिए, उस लफ्ज का तलफ्फुज सीखिए। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज आज मैंने सुना, मिसाल के तौर पर परखच्चे कहा आप में से किसी तालिब ने, ये परखच्चे नहीं होता। अगर आप उसका तलफ्फुज जाके देखें, लिखा है परखचे। अब मैं आपसे पूछ लूं इस लफ्ज का माना क्या है? आप सियाक में इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन लफ्ज का माना आपको मालूम नहीं। तरीका ये होता है, जहां कहीं आपको नया लफ्ज मिले फौरन डिक्शनरी खोलिए, उसका तलफ्फुज सीखिए, उसको किस किस माने में इस्तेमाल किया जाता है ये सीखिए। हल्की सी मेहनत रोजाना आपको करनी पड़ेगी। ज्यादा दिन नहीं गुजरेंगे कि ऐसी मेयारी जबान आप बोलेंगे कि आपको फिर अपने किसी मफहूम को अल्फाज का लिबास पहनाने में या ताबीर देने में कहीं जरा बराबर दिक्कत महसूस नहीं होगी। तलबा अजीज, मैंने कहा अपनी जबान और तहरीर में दो चीजों में आपको पुख्तगी लाने के लिए पहला काम इल्मी तौर पे मजबूती, और दूसरे नंबर पे मैंने कहा जबान पे दस्तरत हासिल करने की कोशिश कीजिए, और तीसरी बात है मुसलसल मुमारसत, प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, मुसलसल मश्क। आपको मुसलसल तकरीर करते रहना चाहिए, दर्स देते रहना चाहिए, और आपको मुसलसल लिखते रहना चाहिए। आप तकरीर इसलिए ना करें कि आप मुकर्रिर बने, आप तकरीर करते जाइए, खुद ब खुद बन जाएंगे। आप तहरीर इसलिए ना लिखें कि आपकी तहरीर कहीं छपे और पढ़ी जाए, आप इसलिए लिखिए कि आपको लिखना है। बड़े अहले इल्म ने लिखा है कि आदमी को बोलते बोलते बोलना आता है और आदमी को लिखते लिखते लिखना आता है। ये मुमारसत, ये मश्क, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसमें आपको जरा बराबर तरद्दुद नहीं करना चाहिए। जहां मौका मिले आप इजहार ख्याल धड़ल्ले से करें, जहां मौका मिले दो चार सतने आप लिखिए, कोई और पढ़े ना पढ़े, आप लिखकर आप ही पढ़े, लेकिन लिखने की आदत डालिए। लिखते लिखते लिखना आता है और बोलते बोलते बोलना आता है। यहीं से आपके मेरे सामने वो सलाहियतें बनती हैं जिसे हम तकरीर या तहरीर की सलाहियत कहते हैं। तलबा अजीज, वक्त मेरे पास ज्यादा नहीं कि मैं आपके सामने और ज्यादा नसीहतें रखूं। ये आपकी सलाहियतों, खास तौर पे ये अंजुमन है तो अंजुमन के हवाले से ये कुछ बातें मुझे आपके सामने रखती थी। इससे हटकर एक उमूमी पैगाम आप तलबा के सामने मैं रखना चाहता हूँ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अपने लिए औलाद की दुआ की। आपको मालूम है हज़रत ज़करिया बे औलाद थे। अल्लाह तबारक व तआला ने एक लंबी मुद्दत तक औलाद से महरूम रखा था। हज़रत ज़करिया ने अपने लिए औलाद की दुआ की, कहा फहबली मिन लदुनका वलिया यरिथुनी व यरिथु मिन आलि याकूब वजअलहु रब्बी रज़िया। हज़रत ज़करिया ने ये जो दुआ की, इसमें एक दुआ तो अपने लिए औलाद की, और इस दुआ में एक जुमला हज़रत ज़करिया का बड़ा माना खेज है, और वो जुमला है वजअलहु रब्बी रज़िया, वजअलहु रब्बी रज़िया। इस आयत की तफसीर अगर आप पढ़कर देखेंगे, अक्सर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये रज़ियुन फ़ईल का सीगा, आप तलबा हैं समझते हैं इसलिए मैं आपके सामने इस ज़बान में गुफ्तगू कर रहा हूँ। कहा रज़ियुन फ़ईल का सीगा है जिसका एक माना मफ़ऊल का आता है, कतील मक़तूल के माने में। ऐसे ही कहा रज़ियुन मर्ज़िया के माने में कि हज़रत ज़करिया ने ये दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे औलाद अता करना, औलाद को मेरे बाद मेरी जिम्मेदारी उठाने वाला, मेरे इल्म मेरी वरासत उठाने वाला बनाना, और ऐ अल्लाह ताला मेरी औलाद से तो राज़ी भी हो जाना, वो मर्ज़ी हो जाए यानी तू उनसे राज़ी हो जाए। अपनी औलाद के लिए हज़रत ज़करिया ने यह दुआ फरमाई है। लेकिन वहीं बाज़ मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में एक और माना जिक्र किया, कहा रज़ियुन कभी
فعیل کا وزن کبھی فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے سمیع اور بصیر ہے، فعیل کا وزن ہے لیکن سامع اور باصر کے معنی میں آیا۔ کہا حضرت زکریا نے یہ دعا کی اپنے بیٹے کے لیے کہ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے میرے رب میں تو دعا کر رہا ہوں کہ میرا بیٹا میرے بعد میری علمی وراثت کا حقدار بنے، یہ وارث بن کر اس کو آگے لے جائے، یہ میری دعا ہے، میری خواہش ہے، لیکن اے میرے رب میری ایک دعا یہ بھی ہے کہ یہ جو پوزیشن، یہ جو مقام، یہ جو حیثیت اپنے بیٹے کے لیے میں طلب کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا بیٹا بھی اپنے اس مقام سے راضی رہے، تو اسے اپنے مقام سے راضی کر دے۔ یہ دعا بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تھی۔ طلبہ عزیز، میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں بڑی اہم بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ آج مدارس اسلامیہ سے اتنی بڑی تعداد میدان کا رخ کرتی ہے فارغ ہونے کے بعد، لیکن میدان جیسے ان کو نگل جاتا ہے، میدان میں کہیں ایسے غائب ہو جاتے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہرچے کے درکانے نمک رکھ نمک شد، نمک کی کان میں جانے والا سب نمک بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے طلبہ، ہمارے فارغین مدارس سے نکل کر عوام میں جانے کے بعد کچھ اس طرح گھل مل جاتے ہیں، اپنی شناخت بھول جاتے ہیں، اور جو ان مدارس کے قیام کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ یہ خود سنور کر سماج کو سنواریں سدھاریں، یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے کئی اسباب ہیں، لیکن ان میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے طلبہ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اپنی حیثیت کو پہچاننے یا اپنے آپ کو واقعی معنوں میں اپنی پوزیشن پہ راضی کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کیا آپ کو طالب علم بننا واقعی معنوں میں منظور ہے؟ کیا آپ سے اگر کہا جائے ساری دنیا ہم تمہاری قدموں میں ڈال دیں گے لیکن تم طلب علم چھوڑ دو، تو کیا ہم میں واقعی وہ طلبہ ہیں وہ کہے دنیا تم اپنے پاس رکھو؟ ہم یہ طلب علم کی راہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اس درجے تک طلب علم کے اس مقام سے محبت کرنے والے ہمارے طلبہ ہیں۔ یہ المیہ ہے کہ بہت سارے طلبہ ایسے ہیں وہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن انہیں اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ اللہ کے بندو، آپ کا مقام اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، ہو سکتا ہے والدین کی ترغیب پہ ہم آ گئے ہو سکتا ہے بغیر کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہم آ گئے ہوں، لیکن جس مقام سے اللہ نے جوڑا ہے دنیا میں آپ سے بڑا کوئی نہیں، آپ سے معزز کوئی نہیں، آپ سے محترم کوئی نہیں، اور آپ سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں، آپ سے بڑا مالدار کوئی نہیں، اور آپ سے زیادہ دنیا کو دینے والا کوئی نہیں، اور آپ سے بڑا محسن انسانیت کا کوئی نہیں۔ آپ کو اپنی حیثیت کو پہچاننا پڑے گا۔ سبحان اللہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ دنیا کی سب سے بڑی گواہی توحید کی گواہی، اور دنیا کا سب سے بڑا گواہ رب العالمین ہے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی گواہی پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے گواہ بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا والملائکۃ واولو العلم، فرشتوں کو اور آپ علماء کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا۔ بعض اہل علم سے میں نے ایک بڑا پیارا جملہ سنا، کہا کہ علم والو تمہاری فضیلت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، پھر دنیا والے تمہاری فضیلت کا اعتراف کرے نہ کرے تمہیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ رب العالمین تمہارے مقام کی گواہی دے رہا ہے تو پھر کس کی اور کی گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنے معزز ہیں کہ سیدھے سیدھے اللہ نے کہا آپ ورثۃ الانبیاء ہیں، آپ انبیاء کے وارث۔ اپنے اس مقام کو پہچانیں، اپنی اس حیثیت کو پہچانیں۔ آپ کہیں میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے کتاب کے حاملین میں سے بنایا۔ یہ میرے بھائی جو آج 26 کی تعداد میں اپنے سینوں میں قرآن کی دولت لے کر نکل رہے ہیں، انہیں فخر ہونا چاہیے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے مالدار کے پاس وہ دولت نہیں جو دولت اللہ نے میرے سینے میں رکھی۔ جس دن ہمیں اپنی اس حیثیت کی شناخت ہوگی، پہچان ہوگی، اور ہم اپنے آپ پہ فخر محسوس کریں گے نا، آپ وہیں سمجھیے وہیں سے اس امت کی سربلندی کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ علماء جب اپنی شناخت اور پہچان کو کسی پہ برتری جتلانے کے لیے نہیں، کسی کی تحقیر اور تذلیل یا توہین کرنے کے لیے نہیں، کسی کی ناقدری کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچان کر اس نعمت کی قدر کرنے کے لیے اور اس نعمت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، جس دن ہم اس مقام پہ پہنچیں گے جہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے، آپ اور ہم
जो अज़कार पढ़ते हैं, सुबह से शाम तक कई बार पढ़ते हैं, उनमें से एक जिक्र ये भी है ना, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिर रसूला नबिया। हम ये जो जिक्र पढ़ते हैं ना, उसी के साथ एक पोजीशन आप तलबा को खुसूसी तौर पर अपने आप को याद दिलाना चाहिए, ऐ मेरे रब, न सिर्फ ये कि मैं राजी हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि तूने सारी दुनिया से छांट कर, सारी दुनिया से उठा कर, कहाँ से उठा के मुझे कहाँ पहुँचा दिया, उस किताब व सुन्नत की तालीम के समझने समझाने वाला मुझे बना दिया, जिस किताब व सुन्नत के अंदर तूने दुनिया और आखिरत का खैर रखा है। तलबे अजीज, मेरी ये दरख्वास्त आपसे है, अपनी इस पोजीशन को पहचानें। हजार खराबियों का खातिमा हो जाएगा और हजार तरह के खैर की बुनियाद बन जाएगा ये एक जज्बा। जिस दिन आप अपनी हैसियत पहचान लेंगे ना, तो फिर आपके जीने का अंदाज बदल जाएगा, सोचने का अंदाज बदल जाएगा, आपके रहने सहने का तरीका बदल जाएगा, आपके पढ़ने का अंदाज बदल जाएगा, और सबसे बढ़कर आपका अपने रब से रिश्ता, उसकी नौइयत बदल जाएगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को पढ़ते पढ़ाते हुए आपके दिल पे वाकई मानों में वो बरकत आप महसूस करेंगे, जिस बरकत के बाद सहाबा ने रातों रात अपने अंदर तब्दीली महसूस की थी। मैं वक्त इजाजत नहीं देता मुझे कि मैं बड़ी लंबी गुफ्तगू आपके सामने करूं। ये कुछ गुजारिशात आपके सामने कर कर एक आखिरी नसीहत आप तलबा और शरीक मजलिस हमारे अपने जो भाई हैं उनके सामने मैं करके अपनी बात खत्म कर लूंगा। मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज कुरान मजीद की एक आयत करीमा से किया। अल्लाह ने कहा, फस्बिर इन्न वादल्लाहि हक़ वला यस्तखिफ़न्नका अल्लज़ीना ला युक़िनून। आप अहले ईमान हैं, आपको अल्लाह ताला के वादों पर यकीन है, तो आपको अल्लाह ताला के दीन पर, दीन की एक एक तालीम पे जम जाना चाहिए। एक मुसलमान की हैसियत से आप तलबा हो या अवामुन्नास में से हो, हमारा ईमान और यकीन किसी भी सूरत में मुतज़लज़ल नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने कुरान की इस आयत में ये बताया, जिनको ईमान नहीं मिला, जिनको यकीन की दौलत से महरूमी नसीब हुई, जो लोग ईमान की दौलत से महरूम हैं, उनका मसला ये होता है कि वो खुद बेयकीनी की जिंदगी जीते हैं। वो चाहते ये हैं कि अहले ईमान से भी उनका ईमान और यकीन छीन लें। असरे हाजिर के फितनों में से एक बहुत बड़ा फितना, बल्कि सबसे बड़ा फितना ये है कि मुख्तलिफ हालतों, मुख्तलिफ सूरतों में मुसलमानों के लिए ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि मुसलमान दीन से दस्तबरदार हो जाए, उनका ईमान और यकीन मुतज़लज़ल हो जाए, या वो दीन को, दीन से रिश्ता बराए नाम रखें, उनका रिश्ता कमजोर हो जाए। ऐसे मौके पे ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, कुरान मजीद की इस आयत को हम हमेशा पेश नजर रखें। अल्लाह ने कहा, फस्बिर, जम जाओ, फस्बिर, डट जाओ, फस्बिर, लगे रहो, इन्न वादल्लाहि हक़, अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। अल्लाह ने वादा किया ना, ये दीन गालिब होगा। अल्लाह ने वादा किया ना, इस दीन में अल्लाह ने तुम्हारी दुनिया का खैर रखा है। अल्लाह ने वादा किया ना, ये दीन तुम्हारी आखिरत की कामयाबी की अकेली जमानत है। अल्लाह ने कितने वादे किए, हर वादे पे तुम्हारा ऐसा यकीन होना चाहिए कि वला यस्तखिफ़न्नका अल्लज़ीना ला युक़िनून, ये दुनिया वाले जो खुद बेयकीनी की जिंदगी जी रहे हैं, ईमान से महरूमी, अल्लाह से कट के जी रहे हैं, नबी से कट कर जी रहे हैं, कहीं ये तुम्हें अल्लाह से न काट ले जाएं, कभी नबी से तुम्हें दूर न ले जाएं। तुम इस दौलत को गंवाने वाले गलती मत करो। महरूम एक तो वो है जिसे कभी खैर नसीब ही नहीं हुआ, उससे बड़ा बदकिस्मत वो है जो ऐसे महरूमों के बहकावे में आकर या उनके प्रोपेगेंडे का शिकार होकर या उनकी साजिशों में मुब्तला होकर खैर की दौलत से खुद को महरूम कर ले। हमें ऐसे महरूमों में जाने से बचना चाहिए। यही पैगाम आज के शरीक इजलास आप तमाम हजरात को देते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात को, तलबा अजीज़ को, जो बातें हमने कही सुनी हैं, इन बातों को समझ कर अपनी ज़िंदगी में हमेशा इनकी पाबंदी करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह दीन व ईमान और जानो माल और इज़्ज़त आबरू की सलामती के साथ मरते दम तक इस दुनिया में कायम रखे, और जब अपने पास बुलाए तो इस हालत में बुलाए कि वह हमसे राज़ी हो। मैं अपनी इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर मदरसा अहमदिया सलफिया के वो तमाम ज़िम्मेदार हजरात जिन्होंने मुझे काफ़ी दूर से बुलाया और बहुत देर से, इस माने में कि बहुत बार बार आपने बुलाया और बहुत देर से मैं अपनी किसी मजबूरी की वजह से पहुंचा, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पहुंचाया, तो आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ बुलाकर, मैंने जैसे कहा, रूह ताज़ा हुई, ईमान मजबूत हुआ,
एहसास ये जागा कि बड़ी मजबूत ज़मीन है। ऐसी ही सरजमीनों पे दी गई कुर्बानियाँ हमारे असलाफ की हैं कि अल्लाह के फضل व करम के बाद इन कुर्बानियों के नतीजे में किताब व सुन्नत की ये दावत आज हमारे पास है। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस चमनिस्तान को रोज़ अफ़ज़ू तरक्की नसीब फरमाए, इसकी नशअत सानिया पे अल्लाह तबारक व तआला ये कामयाब मुस्तक़बिल की मोहर लगा दे, मोहर सब्त कर दे। अल्लाह मुझे और आप सबको मरते दम तक दीन का खादिम बनाए रखे और हमारी मेहनतों कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।